کیا وجہ ہے کہ آن لائن کی طرف ہم لوگ اتنے سیریس نہیں ہو رہے؟ کیا ہمارا آن لائن تعلیم کا نظام ٹھیک نہیں ہے؟ ریموٹ لرننگ کے نظام کو پھر بہتر اگر بنانا ہے تو کیسے بنائیں، اور کچھ نیا کرنے کی اس کے اندر کتنی گنجائش ہوتی ہے؟ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں نصرت حارث صاحبہ، جو کہ ایک بڑا منفرد آن لائن اسکول ہے، اس کو ہیڈ کر رہی ہیں۔ السلام علیکم نصرت صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ نصرت صاحبہ، یہ جو آن لائن لرننگ ہے یہ ہمارے یہاں پر خاص طور پر پاکستان میں، اس ریجن میں بھی اور پاکستان میں خاص طور پر کیوں اتنی مقبول نہیں ہو سکی، اور کیوں ہم اس کو سیریسلی نہیں لیتے؟ جیسے کہ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، برین فیلڈ کی ٹیم اینڈ مینجمنٹ کی جانب سے، کہ آپ نے مجھے یہاں پر مدعو کیا، بولنے کا موقع دیا، اور آپ کا سوال بہت ہی پرٹیننٹ ہے آبویسلی سچویشن کے حوالے سے۔ ہمارے یہاں ہر چیز، یہ صرف آن لائن اسکولنگ کی بات نہیں ہے، اگر آپ اپنے ذہن پر تھوڑا سا ریکال کریں، جب ڈش اینٹینا انٹروڈیوس ہوا تھا تب بھی لوگوں کو ٹائم لگا تھا، اور آج ہر گھر میں کیبل کی سہولت موجود ہے۔ جب پیزا ہماری سوسائٹی میں انٹروڈیوس ہوا تھا تب بھی لوگوں کو ٹیسٹ ڈیولپ کرنے میں مشکل ہوئی تھی، لیکن آج آپ کو پتا ہے کہ پیزا مطلب انٹرنیشنل یا لوکل برانڈ آپ دیکھ لیجیے، وی ہیو سو مینی ایوالو کرنے کے ساتھ۔ سو اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں، ایک تو یہ کہ پوری دنیا میں جب کوئی چینج آتا ہے ہم سب سے آخر میں کیوں اس کو ڈائجسٹ کر پاتے ہیں، ہم کیوں نہیں دنیا کے ساتھ چلتے؟ دنیا میں اس پینڈیمک میں بہت سی چیزیں ایسی ہوئیں جو کہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہیں، بہت سے ایسے تھنکنگ آئی، تھاٹ پروسیس ہوئے جس سے لوگوں کو یہ سمجھ میں آئی کہ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے، اچھا ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ اب جو آپ نے بات کہی، جی اب آپ اس کے حوالے سے اگر آپ ذرا غور کریں، جتنے ہمارے فزیکل اسکول ہیں، وداؤٹ اینی آفنس ٹو اینی بڈی، ہمارے فزیکل اسکولز اس چیز کے لیے تیار نہیں تھے، ان کا LMS نہیں تھا، ان کا سسٹم نہیں تھا، سافٹ ویئر کے حوالے سے، ڈیجیٹل کے حوالے سے اتنی آگہی نہیں تھی۔ جب یہ سسٹم آیا اور ان پر لاد دیا گیا تو ان کو تھوڑا سا مشکل ہوا اس کو کوپ اپ کرنا۔ جب ان کے لیے مشکل ہوئی تو آبویسلی اسٹوڈنٹس کے لیے بھی مشکل ہوئی۔ دین بہت معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ جو آن لائن سسٹم ہے اس کو پورے طریقے سے انٹرسٹنگ بنانا، اس کے ہر اسینشیل کا خیال رکھنا، اور اس کے جو پروٹوکولز ہیں ان کو فالو کر کے چند اسکول ہیں جو آن لائن ایجوکیشن دے رہے ہیں، ادروائز خانہ پوری ہو رہی ہے۔ اگر پروٹوکولز کی بات کریں تو وہ پروٹوکولز کیا ہیں؟ اگر کسی ادارے نے، کسی اسکول نے جو آن لائن ایجوکیشن کا سسٹم شروع کرنا ہے تو کون کون سی بنیادی چیزیں ہیں جو کہ اس کے پاس ضروری ہیں کہ ہونی چاہیے، اور وہ پورے پروٹوکولز کیا ہیں؟ جی، وہ پروٹوکولز میں سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ آپ کا ایک سسٹم ہونا چاہیے جس کو ہم اپنی آن لائن لینگویج میں یا آن لائن اسکول لینگویج میں لرننگ مینجمنٹ سسٹم کہتے ہیں۔ وہ لرننگ مینجمنٹ سسٹم جس کے تحت ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کنیکٹ ہوتے ہیں۔ جب وہ کنیکٹ ہوتے ہیں، ایک تو وہ کنیکشن بہت ایزی ہونا چاہیے۔ ہمارے اسکول نے یہ فیسلٹی پیرنٹس کو پرووائڈ کی ہے، ہمارے پاس ایک ٹیلی کمیونیکیشن پارٹنر ہیں اور جن کے تحت جو ہمیں کنیکٹیوٹی پرووائڈ کر رہے ہیں سو دیٹ بچوں کو ان کی ڈیوائس اویلیبل ہو with the data in it, so that جیسے جتنی ان کو ضرورت ہے گھر کا، نہ وہ انٹرنیٹ یوز کریں، نہ وہ کسی اور کے آسرے میں رہیں، ان کی اپنی ڈیوائس ہو، اس میں انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہو اور ان کے لیے آن لائن ایجوکیشن ایزی ہو سکے۔ سیکنڈ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کا کریکولم اور آپ کے ٹیچرز کے پڑھانے کا طریقہ، جب آپ کے ٹیچرز ایک سسٹم میں ہینڈز آن ہوتے ہیں، ان کی تربیت اس حوالے سے ہو گئی ہوتی ہے تو وہ اس کو انٹرسٹنگ بناتے ہیں۔ اچھا، میں ایک چیز آپ دونوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں اس میں خاص، کہ جو ہم نے اسکول انٹروڈیوس کروا رہے ہیں یہ ہم نے ایسے ہی انٹروڈیوس نہیں کروا دیا، کیونکہ ہمارے ساتھ پروفیشنلز کی ٹیم ہے جنہوں نے مل کے اس آئیڈیا کو پروموٹ کیا ہے۔ ہم نے اس کی فیزیبلٹی بنائی اور ہم نے اپنے بچوں کو آن لائن سسٹم میں، جیسا ہم آن لائن سسٹم بنانے جا رہے ہیں، اس میں ڈالا۔ ان بچوں نے اس میں تعلیم حاصل کی، ٹیچر کے ساتھ ریپو ڈیولپ کی، اور جب وہ یہ سب کر پائے جو کہ باقی اسکولز میں نہیں ہو رہا، میجورٹی آف اسکولز میں نہیں ہو رہا، میں سب کی بات نہیں کرتی، تب ہم نے سوچا کہ دس از اے وائبل آپشن اور اس کو کرنا چاہیے۔ اس میں ایک دو چیزیں میں اور بتانا چاہتی ہوں، آئی نو یو ہیو اے کوسچن، بٹ جو دو چیزوں کے بارے میں آپ نہیں پوچھیں گے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، ہم اپنے اسکول میں ہیلتھ فیسلٹی دے رہے ہیں بچوں کو، جو کہ فزیکل اسکول میں اسکول اسپیسیفک بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں ایک جنرک جو انوائرمنٹ ہے ہمارا، جیسے آپ نے کہا کہ جی انٹرنیٹ ڈیوائس جو ہے، اب گھروں میں ہمارے یہاں پہ ہم سب کو پتا ہے کہ انٹرنیٹ جیسے لگا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر پرابلمز آتی ہیں، پھر اس کے علاوہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں پاکستان کے جہاں پر ہے نہیں، اور اگر ہے تو بہت ہی جو ہے وہ ایسا انٹرنیٹ ہے کہ چل رہا ہوتا ہے وہاں پہ معاملہ، تو پھر آگے کس طرح سے بات ہوگی؟ تو ہمارے جیسے ریجن میں اس طرح کا جو آن لائن لرننگ سسٹم ہے اس کی کامیابی اس بات پر بھی تو ڈیپینڈ کرتی ہے نا کہ وہ جو انفراسٹرکچر ہے وہ کتنا ہو، تو جب انفراسٹرکچر نہیں ہوگا تو کیسے ہم کامیاب ہو سکیں گے؟ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن آپ کہیں سے تو شروع کریں گے۔
या आप अपने मुल्क में या अपने शहर में इस एक्सक्यूज को लेकर ही जिंदगी गुजार देंगे? Obviously we'll have to start, obviously we'll have to modify, obviously we have to evolve as a society. जब हम अपने अंदर चेंज लेकर आएंगे, आज भी पाकिस्तान ने जितनी तरक्की की, हमारा यूथ जिस तरह तरक्की कर रहा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेकर हेल्थ से लेकर, यू नेम इट एंड वी हैव इट, क्योंकि हमने उसकी शुरुआत कहीं से की थी। वो बात आपकी बिल्कुल सही है। देखिए, जब एक सिस्टम में हम आते हैं, हमें पता चलता है कि अच्छा ये हिचेस हैं, ये ग्लिचेस हैं, यहाँ इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं हो रही, यहाँ ये मसाइल हो रहे हैं, देन वी रिजॉल्व इट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। But having said that, we have to start from point zero. हमें शुरू करना है और हमें दुनिया के साथ चलना है। नुसरत साहिबा, कोर्स की भी आपने बात की, आपने बल्कि आगाज यहाँ से किया कि हम इंटरेस्टिंग ही नहीं बनाते तो वो स्टूडेंट्स का भी उसमें इंटरेस्ट कम हो जाता है। जाहिर है टीचर क्लास में अगर फिजिकली मौजूद है तो आपको डर लगता है ना कि वो डांटेगा, चाहे हमारा उसमें इंटरेस्ट हो या ना हो लेक्चर में, उसकी डांट के डर से हम ट्राई करते हैं कि हम वहां पर अटेंशन दें। अब जब ऑनलाइन सिलसिला होता है तो कुछ स्टूडेंट्स हमने देखे कि मुख्तलिफ स्कूल्स में जहाँ पे खाना पूरी हो रही है उनके इंक्लूडिंग देम, बहुत से स्कूल्स में टीचर्स ने ये कहा या बच्चियों ने ये कहा कि नहीं भाई हम वीडियो नहीं अपनी ऑन करेंगे तो आप सिर्फ ऑडियो के बेस पर हमें पढ़ाइए, हम यहाँ से जी सर जी मैडम कहेंगे, चाहे वो बैठी है लड़की या लड़का या सामने नहीं बैठा स्टूडेंट। अब ये टीचर को पता नहीं चल रहा, डिस्ट्रैक्शंस उसके लिए और बहुत सारी दूसरी भी होती हैं, आप एक एनवायरनमेंट में नहीं होते। अब आपका कोर्स ऐसा कौन सा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए? मिसाल के तौर पे दुनिया में जो ऑनलाइन कोर्सेज या डिस्टेंस लर्निंग के प्रोग्राम्स आज से कितने सालों पहले से चल रहे हैं, वो कोविड की उस पर नहीं इंतजार कर रहे थे कि कोविड आएगा तो हम डिस्टेंट लर्निंग शुरू करेंगे, उनके कोर्सेज भी ऐसे हैं कि वो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलते या वो किसी ना किसी किस्म का इंसेंटिव दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में अगर लॉ डिग्री है, ये मैं एक जस्ट एन एग्जांपल, लॉ डिग्री हमारे यहाँ 3 साल की है, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज 2 साल में आपको लॉ करा देती हैं डिस्टेंट लर्निंग, तो यहाँ पर आपको एक इंसेंटिव मिल गया कि आपका टाइम कम लग रहा है और आप घर में बैठकर वो कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ कोर्सेज कैसे होने चाहिए कि जो इस तरह के इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करें और साथ में टीचिंग को, क्लासरूम को, वो जो ऑनलाइन एक वर्चुअल क्लासरूम है उसको इंटरेस्टिंग भी बनाएं? अच्छा, आपने अपने सवाल में एक जवाब भी दे दिया और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब बच्चों की ऑनलाइन क्लास हो रही होती है तो उनके माइक्स बंद कर दिए जाते हैं और उनके कैमरा ऑफ कर दिए जाते हैं, विच शुड नॉट बी द रूल। द रूल शुड बी कि टीचर बच्चों के साथ कम्युनिकेट करे, वो माइक बच्चों के उस वक्त ऑफ करे जब वो लेक्चर डिलीवर करेंगे, उसके बाद बच्चों के माइक ऑफ नहीं होने चाहिए। बच्चों को अपनी राय का, अपने सवाल का पूरा, उनके माइक्स भी खुले होने चाहिए और उनका कैमरा भी, और ये इस बात को हमने मैंडेटरी बनाया है क्योंकि विदाउट आई कॉन्टैक्ट, विदाउट नोइंग दैट यू आर टॉकिंग एंड यू आर इन्वॉल्व्ड, आप वो मकसद अचीव नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं। जहाँ तक आपने करिकुलम की और सिलेबस की बात की, पूरी दुनिया में अब ये सोच आ गई है जिसको हम आगे लेकर जा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम भी उसको आगे लेकर जाएं। देखिए, आपने बहुत सारे बच्चे केजी लेवल के देखे होंगे, अर्ली ईयर जिसको हम कहते हैं फाउंडेशन स्टेज, EYFS हम अपने पास उसको कहते हैं। केजी का एक बच्चा वो होता है जिसको ओरली कुछ 1 to 10 आती है, गिनती आ गई और बाकी कुछ चीज़ें उसने मेमोराइज़ की हैं, उसको आ गई। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लिखना जानते हैं। इस तरह डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं जो कि स्कूल के मुताबिक डेवलप हुई हैं। जो बच्चा जिस स्कूल में गया उसने उतनी एक्सपर्टीज़ हासिल कर ली। हमारे पास एक सिस्टम ये है जो हमने किया है या हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारे पास क्लास 1, 2, 3, 4, 5 जिसमें भी बच्चे आते हैं और अगर हमें लगता है कि ये बच्चे फास्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, ये आगे स्विच हो सकते हैं, तो हम उनको एक क्लास आगे कर देंगे। हमारे पास ये सिस्टम नहीं है कि पूरे साल आपने वही कोर्स पढ़ना है इररिस्पेक्टिवली कि आप उससे ज़्यादा तेज़ हैं। आपने खुद बहुत सी खबरें ऐसी ब्रेक की होंगी जहाँ बच्चों ने 13 साल की उम्र में ओ लेवल्स कर लिया, 12 साल की उम्र में ओ लेवल्स कर लिया, 14 साल की उम्र में ओ लेवल्स कर लिया। तो फिर क्या ज़रूरत है कि हम हर बच्चे को 17 साल में, दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं तो ये सारी दुनिया में इम्प्लीमेंटेड सिस्टम है, मगर उसके साथ जो मैं आपको बता रही हूँ ये भी सारी दुनिया में इम्प्लीमेंटेड है, जिसे K-12 कहा जाता है। ये सिस्टम पूरी दुनिया में मुतारिफ किया गया है। साल भर की ही क्लास होगी, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि साल भर की क्लास नहीं होगी। आप इसका डिफरेंस समझिए, मतलब अगर कोई बच्चा क्लास 3 में है, स्कूल स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे, मैं एक जेनेरिक बात कर रहा हूँ कि जब हम बात करते हैं तो जेनेरिक बात मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ही बता सकती हूँ ना। जेनेरिक बात मैं भी जेनेरिक ही आपको बता रही हूँ, लेकिन वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। आपने जैसे पूछा कि आप करिकुलम को कैसे डिफरेंट बनाएंगे, तो वो तो आपने मुझसे ही पूछा, तो लेट मी एक्सप्लेन। मैं सिर्फ उसके बारे में बात करी थी। बाकी अगर कोई जेनेरिक आपका सवाल है तो मैं आपको जेनेरिक जवाब दे देती हूँ। एक एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि पेरेंट्स बेचारे जो है वो भी बड़े एक परेशानी में होते हैं कि हमारा बच्चा हर वक्त मोबाइल के साथ
सामने या टैब के सामने या लैपटॉप के सामने बैठा हुआ है, पता नहीं ये पढ़ भी रहा है या नहीं पढ़ रहा, उसने वो वाला टैब खोला हुआ है जिसमें टीचर नजर आ रही है या अगले टैब पे चला गया जिसमें गेम लगा हुआ है। तो कंसर्न्स बहुत सारे हैं ऐसे पेरेंट्स के, तो मैं चाहता हूं कि वो वाले कंसर्न्स उनके दूर और हों। देखिए, अच्छा ये कंसर्न्स मैं आपको बता दूं कि जिस तरह बच्चे स्कूल जाते हैं तो माँ बाप बरी जिम्मा नहीं होते। जब फिजिकल स्कूल जाते हैं माँ बाप बरी जिम्मा नहीं होते, उनके सारे प्रोजेक्ट्स में, उनके सारे काम में, उनकी सारी तालीम में माँ बाप उतने ही इन्वॉल्व रहते हैं। दिस इज़ अ स्विचिंग, दिस इज़ अ इवॉल्वमेंट, जिस इवॉल्वमेंट में हम डिजिटल की तरफ आ रहे हैं। तो जब हम डिजिटल की तरफ आएंगे तो उसमें भी माँ बाप का चेक ज़रूरी है, माँ बाप का एक सर्टन चेक तो ज़रूरी होता ही है। और उसके अलावा जब आप बड़ी क्लासेस की बात करते हैं तो ये कोविड से पहले भी बच्चों को इस चीज़ की वाकफियत हो गई थी कि वो एरियाज़ जो आपके घर से दूर हैं, जैसे मैं इस वक्त कराची में हूँ, कराची में तो हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में 1 घंटा लग जाता है। तो ये सिस्टम तो ऑलरेडी हमारे पास इस तरह से सर्कुलेट हो चुका था। फिर अगर आप पाकिस्तान के देही इलाकों की बात करें, वो बच्चा जो किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर सिटी की सहूलत नहीं है या जहाँ पर आप ये समझते हैं कि वो एजुकेशन उसे नहीं मिल सकती जो कराची, इस्लामाबाद, लाहौर के बड़े स्कूल्स में है, तो ये एवेन्यू उन बच्चों के लिए डोर्स ओपन करेगा कि कम पैसों में आपने 25,000 30,000 नहीं देने। इस तरह के एवेन्यूज से बच्चों को ये अफादियत हासिल होगी और उनके पेरेंट्स के लिए ये एक डोर ओपन होगा जहां वो अपने बच्चों को, अगर वो चाहते हैं कि ये कैम्ब्रिज की तालीम हासिल करे और वो 25,000 नहीं दे सकते, तो वो ऑनलाइन सिस्टम को ट्राई आउट जरूर कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, उससे उनका बड़ा फायदा इस गैप को फिल किया जा सकता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा, अब एक और कंसर्न भी आता है कि हमारे यहाँ पर जो जॉब मार्केट है वो भी शायद ऑनलाइन डिग्रीज को इतना ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी नहीं देते हैं और हमें शायद फिजिकल एजुकेशन वाले लोगों को हायर करने का ज़्यादा शौक होता है। और ये ट्रेंड हमारे यहाँ पर मैंने देखा है, वो ट्रेंड भी फिर आहिस्ता आहिस्ता इससे चेंज होगा। देखिए, आपको याद है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हवाले से जब ये शुरू हुआ था, वर्चुअल एक काफ़ी ये नाम आया था सामने, अल्लामा इकबाल तो ओपन है अब वो बहुत फेमस है। और मैंने ऐसे, मेरी अपनी दोस्तों ने डिग्रीज हासिल की साइकोलॉजी में और अब वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस कर रही हैं। ज़रूर ये मैटर करता है कि आपकी गुडविल क्या है, चाहे वो स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, कोई भी तालीमी इदारा है, उसकी गुडविल क्रिएट होने में एक टाइम लगता है। जितने इदारे मौजूद हैं उन्होंने ऑब्वियसली अनथक मेहनत के बाद अपना नाम कमाया है, जिनके नाम पे और जिनकी डिग्रीज पे आपको प्रेफरेंस मिलती है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन वर्चुअल सिस्टम को या डिजिटल सिस्टम को आप ये कह के इग्नोर नहीं कर सकते या हम ये सोच के उसमें डिसअपॉइंट नहीं हो सकते कि हमारे बच्चों को तो आगे कोई चीज़ ही नहीं मिलेगी, आगे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। इसमें अगर आप इजाज़त दें तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे हमने अपने सिस्टम में, मैं उसको पब्लिसाइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं एक बात सिर्फ ये आपको बता रही हूँ कि सोच डिफरेंट लोगों की हो सकती है कि आप मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, उनकी सोसाइटीज़ के साथ अपने लेज़ॉन क्रिएट कर सकते हैं। You see, आप ब्रिटिश काउंसिल को ऑन बोर्ड ले सकते हैं अगर आप कैम्ब्रिज की तालीम हासिल कर रहे हैं। आप वो स्कूल्स जो यूके में मौजूद हैं, वो स्कूल्स जो और जगहों पे चाइना में मौजूद हैं, ऐसी बहुत सारे लेज़ॉन मौजूद हैं, ऐसे बहुत सारे अग्रीमेंट्स मौजूद हैं जो आप उन स्कूलों के साथ कर सकते हैं। वो आपके साथ एक्सचेंज प्रोग्राम करते हैं, यू गेट दैट इंटरनेशनल एक्सपोजर एज वेल। हाँ, तो टेक्नोलॉजी, और मैं एक और चीज़ यहाँ पर बताना चाहती हूँ जो स्कूल से रिलेटेड नहीं है, मगर पूरी दुनिया में ऑटोमेशन इंट्रोड्यूस कराई जा रही है। आपने पढ़ा ही होगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के हवाले से, जब रेनेसांस का पीरियड था, जब इंग्लैंड में एनलाइटनमेंट हो रही थी, जब पेरिस से सारी चीज़ें इंग्लैंड में ट्रांसफ़र हो रही थी, उस वक्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। फिर दूसरी बार आया, फिर तीसरी बार, अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है 4.0, जो पूरी दुनिया को ऑटोमेशन की तरफ ले जा रहा है। अब आपने सुना होगा वो गाड़ियां भी आ रही हैं जिसमें ड्राइवर नहीं बैठे होंगे। सो डाउन द लाइन 10 साल बाद ऊपर रहना पड़ेगा टेक्नोलॉजी को इस तरह से अजीब-अजीब तरीकों से। स्कूल भी ऐसे आ जाए जिसमें टीचर ना हो, हम पीछे नहीं रह सकते, बच्चे ना हो शायद। नुसरत, क्विकली, हम पीछे नहीं रह सकते, हमारे पास वक्त लिमिटेड है। आपसे ये मैं जरूर जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान में आपने जाहिर है जो रिसर्च की है, आपका अपना इदारा भी आप चला रही हैं, क्या गलतियां बुनियादी हमने की हैं ऑनलाइन एजुकेशन फराहम करने के दौरान जो नहीं होनी चाहिए या जो एड्रेस की जा सकती हैं? देखिए, एक तो वही चीज़ें जो आपने शुरू में कही थी, मगर गलतियों के अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि हम अभी इस सिस्टम से ज़्यादा एडेप्टेबिलिटी नहीं हुई है, हम इससे वाकिफ़ नहीं हुए हैं सही तरह से। जब भी कोई नई चीज़ आती है ना, हमारे यहाँ रेजिस्टेंस बहुत है। हमें सिर्फ अपने अंदर लर्निंग का जज्बा रखना चाहिए। कोई आपको ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं करवा रहा, आप मगर अपने दिलो दिमाग को इतना खुला रखें कि अगर कोई नई चीज़ आ रही है तो उसे सीखें ज़रूर,
اسے سمجھیں ضرور. میرے خیال میں ہماری سوسائٹی میں سب سے بڑا جو ریزسٹنس ہے, باقی تو ہر ادارے کے اپنے اپنے ایشوز ہوتے ہیں, چیلنجز ہوتے ہیں, وہاں پر لوگوں کے بنیادی یا میجر ڈفرینسز ہو سکتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں ایز اے سوسائٹی وی ٹیک اٹ ایز اے چیلنج. جب کوئی نئی چیز آتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ریزسٹ کر دیں. نہیں, ہمیں اسے سیکھنا چاہیے. جب آئن مسک نے ایسی گاڑی بنا لی, جب آئن مسک نے آج ناسا کے ساتھ اپنے راکٹس جو ہیں وہ بھی لانچ کر لیے, تو چلیں اس لیول پر نہیں, اس سے نیچے سے نیچے سے نیچے کہیں سے کرنی چاہیے. شروع کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ ادا کریں گے نصرت صاحبہ, آپ نے وقت نکالا, پروگرام میں اتنی امپورٹنٹ چیزیں کی ہیں, آن لائن لرننگ کے حوالے سے بتائی ہیں ہمیں. اسٹوڈنٹس کو بھی چاہیے اور پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ زیادہ اڈیپٹیبل ہو جائیں, اور ٹیچرس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس ٹیکنالوجی سے واقفیت اپنی کرائیں.